Hello. Hello. Good afternoon to all. Good afternoon, sir. Okay, so this is the 91-2, and okay, so also you all are requested to mark your attendance accordingly uh, by mentioning your section name and roll number. Clear? So okay, so now I'm going to start. I think most of the students have joined. Okay, so I'm going to start this right now. Am I audible properly to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. sir. So, okay, so till eight experiment we have discussed in the previous lab for both the sections. So now in the today's lab we will discuss two experiment. That is experiment 9 and 10 here, and all the experiment will be covered by today, and that's why I have merged both the classes, both the sections. So also in the next lab, now I'm going to share you the virtual lab file first, which experiment we are going to discuss today. Clear? So we have the experiment that Good is, afternoon, you can sir. see. Good afternoon to all. The experiment is identification of various types of PCB, that is printed circuit board and soldering techniques, that will come under experiment number 10, and that is mentioned on the second position on the lab activity. That is your 10th experiment exactly. And the 9th one is your study of lab equipment and components, CRO, multimeter, clear, function generator, and your power supply like active passive component and so in the previous lab, today's lab, we will discuss the instruments, the measuring instruments like CRO, multimeter, voltmeter, clear? So I'm just going to start with the some fundamental video related to that. Clear? आपको कुछ फ्री शेयर करेंगे और थोड़ा सेक्शन एज वेल विथ योर रोल नंबर एंड not file. Just wait. Is it visible to all of you? ये सभी को दिख रहा है? Yes. Yes, sir. ओके, सबसे पहले हम लोग CRO से डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसका सर्किट डायग्राम आप लोग, इसका एक ब्लॉक डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा। ये सभी को क्लियर हो रहा है बेटा? सभी को क्लियर दिख रहा है? Yes, sir. It is visual. ओके, तो CRO सबसे पहले CRO होता क्या है? CRO कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप इसका फुल फॉर्म है, ठीक है? Exactly, it is a type of oscilloscope where we are getting the light beam using what, an electron gun that produces the fine beam that strikes on the oscillator screen, the oscilloscope screen, and then we get the image pattern. Clear? So there is cathode ray which is produced over here. By the cathode terminal we are getting the rays, and the cathode terminal is what? The electron gun, exactly, where the a beam, a high intensity beam is produced. Clear? Of very focusing light and high intensity, high frequency light is there. Clear? We are having
you can see this is the middle section that including the CRT. Basically, this is called the CRT. This is the heart of CRO. It is known as cathode ray tube. Clear? So cathode ray tube पहले हम लोग का यूज होता था टीवीज में. आप लोगों ने देखा होगा CRT स्क्रीन होती थी जो आगे से थोड़ा सा कर्व्ड फॉर्म में होती थी. क्लियर? अभी तो सारी फ्लैट स्क्रीन आ रही हैं, LEDs वगैरह जो भी है. तो अब इसका ट्रेंड खत्म हो गया है. बट इन द प्रीवियस पहले आपका प्रीवियस सिनेरियो में हमारा ये CRT बेस्ड टेलीविजन वगैरह यूज होते थे. क्लियर? सो ये आप देख सकते हैं इसमें CRT इज द हार्ट ऑफ CRO. ये पूरा आपका CRO है, लेकिन ये जो मिडिल सेक्शन है ये आपका CRT है, दैट इज कैथोड रे ट्यूब. इसमें आपका देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन गन है. दिस इज द इलेक्ट्रॉन गन, जिससे एक फाइन इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस हो रही है. देख सकते हैं रेड रेड कलर में डॉट डॉट फॉर्म जो दिख रहा है आपको. ठीक है, ये स्क्रीन है जिसपे ये बीम स्ट्राइक करती है. ये बहुत ही नैरो बीम होती है, हाई फोकसिव होती है. ठीक है, और हाई इंटेंसिटी लाइट होती है. ठीक है, और इसको फाइन बनाने का काम कौन करता है? फाइन बीम, जिससे बीम हमारी डाइवर्ज ना होने पाए, इसको फाइन बनाने के लिए हम लोग दो प्लेट्स यूज करते हैं, एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट. ये आप देख सकते हैं, ये हमारी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है. इन दोनों प्लेट्स के बीच से ये लाइट पास होती है. ठीक है, जो प्लेट्स है उसके बीच में जो स्पेसिंग है वो बहुत ही कम होती है. अगर ज्यादा स्पेसिंग होगी तो लाइट डिफ्लेक्ट होके हमारी डाइवर्ज भी हो सकती है, मतलब फैल सकती है. क्लियर? तो हमें इसको नैरो बनाए रखने के लिए हम लोग स्पेसिंग बहुत कम यूज करते हैं. ठीक है, बाकी ये हमारे फोकसिंग एनोड हैं जो कि लाइट को फोकस करते हैं टू ए पर्टिकुलर डायरेक्शनल. ठीक है, डायरेक्शन में इसको फोकस करने के लिए हमारे ये यूज होते हैं. ये हमारी पावर सप्लाई, एक हाई वोल्टेज लो वोल्टेज सप्लाई है जो CRT को गिवन है, और नीचे जो हाई वोल्टेज है वो CRT को जाता है. लो वोल्टेज हम लोग ऑल सर्किट्स, जो अदर सर्किट्स हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, बाकी आपके कुछ ब्लॉक्स और हैं, ये देख सकते हैं आपको. वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन, ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर एंड हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर. वर्टिकल एम्पलीफायर पे हमारा इनपुट सिग्नल आ रहा होता है, जो कि जैसे साइनोसोडल वेव है या जो भी है, हम इनपुट सिग्नल देते हैं, उसको पहले हम वर्टिकली एम्पलीफाई करते हैं क्योंकि सिग्नल का एम्पलीट्यूड या स्ट्रेंथ कम होती है. उसको हमें पहले एम्पलीफाई करना होता है टू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो एम्पलीट्यूड हम वर्टिकली एम्पलीफाई करते हैं अप टू ए सर्टेन लेवल. ठीक है, इसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो आउटपुट निकलेगा वर्टिकल एम्पलीफायर का, ये दो जगह जाता है. एक जगह डिले लाइन पे जाता है और दूसरा वाला पोर्शन हमारा ट्रिगर सर्किट पे जाता है. ठीक है, तो डिले लाइन से हमारा जो होके जा रहा है वो डायरेक्टली आपका देख सकते हैं प्लेट्स पे हमारा अपीयर हो जाएगा. लेकिन जो ये हमारा जो पोर्शन है उसको इतना पोर्शन कवर करना पड़ रहा है यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेट तक आने के लिए. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो वर्टिकल एम्पलीफायर से जो सिग्नल आ रहा है उसका एक पोर्शन तो हमारा डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाएगा बहुत जल्दी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे. और होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा दोनों ही सिग्नल, चाहे वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जा रहा हो चाहे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जा रहा हो, दोनों के दोनों सिग्नल सिंक्रोनाइज होने चाहिए, एट ए सेम टाइम पहुंचने चाहिए. तो यहाँ से जो सिग्नल आएगा उसको तो एक ही ब्लॉक कवर करना है प्लेट पे आने के लिए. तो यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है उसको 3 ब्लॉक्स कवर करने हैं प्लेट पे पहुंचने के लिए. और कंडीशन क्या होती है कि प्लेट पे सिग्नल एट ए टाइम पहुंचने चाहिए दोनों प्लेट पे. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर यूजिंग व्हाट, इसी वजह से हम लोग डिले लाइन यूज करते हैं. तो डिले लाइन क्या करता है, उतने अमाउंट का डिले देता है सिग्नल में, यहाँ से जो आ रहा है कि उतने अमाउंट का डिले दे देगा जिससे वो यहाँ पे होल्ड करने के बाद उतने ही टाइम पे इस प्लेट पे पहुंचेगा जितने पे ये जो दूसरा सिग्नल है ये 3 ब्लॉक्स होने के बाद यहाँ पहुंच रहा है. ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए हम एक सर्टेन अमाउंट का डिले दे देते हैं जिससे ये वाला सिग्नल और जो नीचे से फीडबैक सिग्नल आ रहा है दोनों एट ए सेम टाइम पहुंचे. किस प्लेट पे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्लेट्स पे, जिससे सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रख सके. ठीक है, नीचे ट्रिगर सर्किट लगा है. ट्रिगर सर्किट अगेन यूज्ड टू जनरेट द ट्रिगर पल्सेस व्हिच इज एग्जैक्टली यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द सिग्नल. जो भी सिग्नल मेंटेन करना उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम ट्रिगर सर्किट यूज करते हैं. टाइम बेस्ड जनरेटर क्या करता है, एक सॉटूथ वेव को जनरेट करता है. ठीक है, सॉटूथ सिग्नल जो होता है उसको जनरेट करता है
हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर क्या है? हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर जैसे यहाँ वर्टिकल एम्पलीफायर था जो सिग्नल को वर्टिकल एम्पलीफाई कर रहा था, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर हॉरिजॉन्टली उसको एम्पलीफाई करता है। ठीक है, दोनों ही सिग्नल हमारे यहाँ डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे जाते हैं, फिर हमारा क्या कहते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है उसको हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जिससे हमारी यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होती है, स्ट्राइक करती है, और हाई इंटेंसिटी की लाइट हमारी जब स्ट्राइक करती है स्पीड में तो डिफ्लेक्ट होती है। डिफ्लेक्ट होने से क्या होता है, हमारी इमेज फॉर्म होती है स्क्रीन के ऊपर। जो स्क्रीन होती है वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। ठीक है, ये सभी को समझ में आ रहा है बेटा? आवाज आ रही है मेरी सभी को? एम आई ऑडिबल राइट नाउ? Yes, sir. Yes, sir. ये पूरा हमारा सीआरओ का पैटर्न है। और इलेक्ट्रॉन गन जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करता है। ये जो रेड रेड कलर की है, ये हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन बीम है। और इसको इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इसको हम हीटिंग करते हैं। वी आर हीटिंग द व्हाट, इलेक्ट्रॉन गन पे पास जो हीटर लगा होता है, वो हीट होने से एक हमारी कैथोड रे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रॉन बीम कह रहे हैं, दैट इज द कैथोड रे। क्लियर? इसीलिए इसको कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। बाकी इसकी फंक्शनिंग सारी गिवन है। सीआरओ का यूज क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। तो हमने ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ा है। सीआरओ से हम लोग जनरली कई सारे ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं, लाइक करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, ठीक है, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आप सीआरओ से मेजर कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सीआरओ एक स्क्रीन होती है, सीआरओ पे एक स्क्रीन होती है जो कि जिसपे हमारे ग्रिड्स होते हैं, 8x8 का ग्रिड होता है, जिससे हम लोग सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उस पर हमारी एक वेवफॉर्म डेवलप होती है, कुछ बटन्स भी लगे होते हैं, उन बटन्स को हम रोटेट करके जो है पैटर्न हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उस पर आप कई तरह के वेवफॉर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, साइनोसोडल, स्क्वायर वेव, शॉर्टवुड वेव, ठीक है, ट्रायंगुलर वेव, जैसा आप चाहें वैसी वेवफॉर्म वहाँ पे आ जाएगी। उसको आप लोग, उससे आप लोग सारे मेजरमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ हमारा फंक्शन जनरेटर होता है। सभी को दिख रहा है बेटा? ये दिस इज द फंक्शन जनरेटर। Yes, sir. ओके, अभी मैं आपको इसकी एक वीडियो भी दिखाऊंगा। वीडियो लिंक हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो। सो वो आप लिंक पे आपको थोड़ा सा एक डिमॉन्स्ट्रेशन समझ में आएगा कैसे कैसे हमारा होता है, ये कैसे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो भी हम आपको शो करेंगे। पहले मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये हमारा अनदर मेजर कंपोनेंट है, फंक्शन जनरेटर, दैट इज यूज कॉमनली इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एप्लीकेशन। क्लियर? इसको हम एफजी मींस फंक्शन जनरेटर बोलते हैं। इसका जैसा कि नाम है, इसका मतलब होता है ये डिफरेंट वोल्टेज सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? ये डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको फंक्शन जनरेटर बोलते हैं। अब वो कौन कौन से वोल्टेज सिग्नल्स हो सकते हैं, जैसे साइन वेव हो गया, पल्स, साइन पल्स, ट्रायंगुलर वेव्स, ये सारी चीजें हमारी आपकी जनरेट होती है। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली रिक्वायर्ड सिग्नल इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आर साइन एंड पल्स वेव। पल्स आपका समझ रहे होंगे, जैसे स्क्वायर वेव वगैरह होती है वो पल्स फॉर्म में होती है। साइन वेव आप लोग को पता ही है, sine and cosine wave. Clear? You all know about this. Clear? Now if we move further, so the sine wave signals find their use most circuits such as amplifier, filter, etc. Yeah, all circuits. And also so in the general pulse signal, the high and low levels time periods are different. Square waves is a special case when the periods are equal. Clear? So इसका भी हम लोग अभी देखेंगे, फंक्शन जनरेटर का भी। And then we have a multimeter. Clear? ये सभी को दिख रहा है बेटा? Is it visible to all of you? ये हमारा पावर सप्लाई है। This is the power supply that is designed as a constant current source and constant voltage source for the use in laboratory.
इंडस्ट्री एंड फील्ड टेस्टिंग। ये हमारी पावर सप्लाई है जहां से हम पावर देते हैं। क्लियर? दिस इज वेरी कॉम्पैक्ट साइज, लाइट वेट एंड लो पावर लॉस। क्लियर? सो इसके अलावा इट प्रोवाइड डीसी आउटपुट वोल्टेज फॉर एनालॉग एंड डिजिटल टेस्टिंग। क्लियर? सो द डीसी आउटपुट कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम 0 to 30 वोल्ट। यहाँ पे आपको नॉब्स दिख रहे होंगे। डीसी वोल्टेज को अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप नॉब्स के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है? 0 to 30 वोल्ट की रेंज में। ठीक है? विथ कोर्स एंड फाइन कंट्रोल्स। क्लियर? विथ कोर्स एंड फाइन कंट्रोल्स एंड करंट लिमिट इज एडजस्टेबल फ्रॉम 0 to 1 एम्पियर। ठीक है? ओवरलोडिंग इज इंडिकेटेड बाय एलईडी। जो भी ओवरलोडिंग होगी तो वो आपका एलईडी इंडिकेट करेगा कि अगर वोल्टेज की ओवरलोडिंग हो रही है, करंट की ओवरलोडिंग हो रही है, दैट ऑल शुड बी डिस्प्लेड क्लियर थ्रू एलईडी। सो यहाँ देख सकते हैं आप, ये ए मींस एमीटर के लिए रीडिंग हो गई, जो भी करंट की मेजरमेंट है वो यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ वी लिखा है, ये वोल्टमीटर की रीडिंग है, तो यहाँ वोल्टेज की रीडिंग आएगी। ठीक है? ये आपका पावर बटन है। बाकी ये आपका कह सकते हैं नॉब्स है, वो सॉरी जहाँ पे पोर्ट्स हैं जहाँ पे आप इंसर्ट करते हैं वायर को। ठीक है? टू मेजर करने के लिए। ये आपका रोटेटिंग नॉब्स हैं जिससे आप रोटेट करके उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है? तो a 3-digit LED display for voltage and current is used to read the values. So these two parameters can be switched to display either voltage or current. Clear? So अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो आउटपुट कांस्टेंट करंट एडजस्टेबल होता है, आउटपुट कांस्टेंट वोल्टेज एडजस्टेबल है, एलसीडी वोल्टेज एंड करंट डिस्प्ले करता है, कांस्टेंट वोल्टेज एंड करंट ऑपरेशन इज इंडिविजुअल, ओवर करंट प्रोटेक्शन इज देयर। क्लियर? इससे पावर सप्लाई के लिए। अब हम आते हैं डिजिटल मल्टीमीटर पे। मल्टीमीटर आप सभी लोगों ने देखा होगा, घर में आपके मल्टीमीटर होता है। हेलो बेटा, आवाज आ रही सभी? Yes, sir. ओके। मल्टीमीटर आप सभी लोग को पता ही, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे मल्टीमीटर हो, चाहे आपका सीआरओ हो, चाहे आपका ऑक्सिलोस्कोप हो, चाहे आपका डीएसओ की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे ओम मीटर की बात करूँ, सभी आपके एक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को मेजर करते हैं। ओम मीटर से रेजिस्टेंस मेजर होता है। ठीक है? सीआरओ से आप वेवफॉर्म जनरेट कर सकते हैं, उसके थ्रू आप सारे पैरामीटर को मेजर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, करंट, वोल्टेज। क्लियर? अगर हम बात करें मल्टीमीटर की, तो मल्टीमीटर से भी आप करंट मेजर कर सकते हैं और वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, टाइम पीरियड मेजर कर सकते हैं, everything you can current, voltage, and you can say frequency you may also measure over by this. Clear? So इससे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो देयर आर टू कॉमन टाइप्स ऑफ मल्टीमीटर, एनालॉग एंड डिजिटल। डिजिटल मल्टीमीटर्स आर द मोस्ट कॉमन, दे आर nowadays they are preferred. So they use as the liquid crystal display। आप देख सकते हैं ये जो डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा, ये एलसीडी डिस्प्ले है जहां से रीडिंग आएंगी। क्लियर? सो other advantages include higher input impedances which will not load down sensitive circuits. Clear? So and input protection. Analog meters use a needle moment and calibrated scale to indicate values. So these are popular for the years, but recently their numbers have declined. Yeah, so means analog multimeters are not preferred in nowadays because the needles are used to and that may give you the deflection of the result. Clear? That you will not get the exact result as in case of digital multimeter. So digital multimeter में आपको exact result मिलता है, no deflection is there. Clear? So every voltmeter has an input internal resistance or impedance. So input impedance of an analog meter is expected in ohms per volt. Clear? So digital multimeter features a digital or liquid crystal display, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी. Clear? So now we come to the demonstration of this. So जिससे थोड़ा मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगी कि कैसे हम लोग इससे मेजरमेंट करते हैं. ठीक है? बाकी सभी लोग अपनी मैं स्टार्ट करता हूँ CRO से. So just wait, I am going to share you the file.
वेट फॉर ए मिनट। मैं आपको 1 बाय 1 वीडियोस दिखाने की कोशिश करता हूँ, बाकी लिंक मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। Okay, so now we have the availability of the CRO right now. Okay. ये वीडियो आप लोग देखिए। We call cathode ray oscilloscope or CRO. So this is an analog CRO. And as you can see, this is we call functional generator, and we will use that later on to describe the work in principle of CRO. So as you can see, there are lots of knobs in CRO. ये प्रॉब्लम है इसमें, wait. Now concentrate on the knobs of the CRO. First of all, this red knob is the power knob of a CRO. As you can see, if I press it, it is the main switch already. So if I press it, so it makes the circuit on, and you can see two lines. पर थोड़ा सा ग्लिचिंग इज देयर, सो कोई इशू नहीं है। मैं अगर नहीं ओपन होगा, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Voice is clear. हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि सम नेटवर्क इशू इज देयर, दैट्स व्हाई द वीडियो इज नॉट प्लेइंग प्रॉपर्ली। सो मैं आप लोग को लिंक शेयर कर दूंगा जिससे आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव अनदर डिस्कशन रिगार्डिंग द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, अदरवाइज लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि नेट इशू हो रहा है जिसकी वजह से लिंक शेयर होने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं आपको क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। और बाकी मैं अपने एंड से जो सेकंड नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है 10th वाला, वो भी मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ क्या है उसमें। So that is the identification of various type of printed circuit board and soldering techniques. Clear? So this is the 10th experiment. So now we are going to discuss about the PCB. Clear? PCB आप लोग वैसे तो यहाँ लैब में आके आप लोग कर सकते हैं कि PCB डिजाइनिंग होती है, शोल्डरिंग उसमें हम लोग करते हैं। क्लियर? PCB आप यहाँ देखेंगे PCB होता कैसे है, ठीक है। उसके बाद उस पर शोल्डरिंग करना, और जैसे कंपोनेंट जो भी हम लोग आईसी वगैरह डिजाइन करते हैं उसमें हम लोग शोल्डरिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। और जितने भी ट्रांजिस्टर एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट जो भी हैं वो आप लोग उस पर माउंट करते हैं विद द शोल्डरिंग मेथड। क्लियर? सो we have a PDF for this also, so I'm just going to discuss in brief way, and then if possible then I will show you the view of this game. ये दिख रहा है बेटा सभी को, ये जो मैं शेयर किया है? Yes, clear. Yes, sir. sir. Video है. ये आपका 10th एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। पीसीबी बेसिकली पीसीबी डिजाइन, ठीक है। और तो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ इसमें। बाकी मेनली ये लैब डिमॉन्स्ट्रेशन होता है इसका, आप लोग आके कॉलेज में जब आएंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आके, यहाँ हमारी पीसीबी लैब है, वहाँ आके आप लोग ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सोल्डरिंग करते हैं, कैसे हम लोग सारा प्रोसीजर जो है जो भी है वो आप यहाँ पे आके, ड्रिलिंग, सोल्डरिंग, एचिंग, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ओके, सो बेसिकली एक चिप होती है ये, ठीक है। पीसीबी इज ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कि एक चिप टाइप का होता है, ठीक है। और इसमें आप सारे एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स को माउंट कर सकते हैं, ठीक है। और the designing is very often an integral part, basically in many design high speed digital, low level analog and RF, to name a few. The PCB layout may make or break the operation and electric performance for the design. So it must be remembered that PCB traces have resistance, inductance and capacitance, just like your circuit does. Clear? So if I talk about the PCB board, so आपको पीसीबी लेआउट दिखाने की कोशिश करता हूँ, कुछ किस तरह से होता है ये, ठीक है। If we have the diagram availability, then I will show you. ये सभी को दिख रहा है बेटा? Yes, sir. So ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा प्रोटोटाइप होता है, क्लियर, जिसमें हम लोग पीसीबी पैकेजेस बोलते हैं। ए पॉलीगन स्ट्रक्चर है ये, क्लियर। दैट फिल्स इन a desired area with copper, which flows around other pads and tracks. Clear? So they are very useful for laying down ground planes. Clear? So इस तरह से हमारा कुछ बोर्ड होता है, और ये सॉलिड पॉलीगन फिल है, क्लियर। सो इसके बाद अगर हम और बात करें, देखिए कई तरह हमारे बेसिकली 3 तरह के पीसीबी होते हैं, सिंगल लेयर्ड पीसीबी, डबल लेयर्ड पीसीबी और मल्टी लेयर्ड पीसीबी, ठीक है। सो ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से हमारा कुछ डिजाइन होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, ये देख सकते हैं जो मैं बात कर रहा था अभी, सिंगल लेयर डिजाइन या सिंगल साइडेड डिजाइन, ये फर्स्ट टाइप होता है पीसीबी का। A single sided design can greatly reduce the cost of your board. Clear? If you can fit your design on a single sided board, then it is preferable to do so. ठीक है? So single sided design requires some unique technique which are not required once you go to double sided and multi layer design. ठीक है? That is another category. It is certainly more challenging than a double sided layout. In fact, a single sided board design will be regarded inversely proportional to the number of jumper links used. Clear? So जो हम कॉपर वायर यूज करते हैं, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं जो भी शोल्डरिंग वायर्स होते हैं जिससे हम शोल्डरिंग करते हैं, ठीक है, बोर्ड के ऊपर, that is reflected on both sides into the double side, while in case of single side it reflect only one side. Clear? So that is the major difference. So इसके बाद आपका डबल साइडेड है। डबल साइडेड डिजाइन gives an extra degree of freedom for designing your board. Things that were next to impossible on a single sided board becomes relatively easy when you add an additional layer. Clear? So ठीक है। सो उसके बाद मास्किंग वगैरह भी इसमें होती है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। दिस इज द डिस्प्ले ऑफ दैट। क्लियर? एंड ये 6 लेयर पीसीबी कंस्ट्रक्शन है, ये देख सकते हैं। ये आपका कोर होता है, ये आपका इसके बाद वाली लेयर है, देन ये अगेन कोर है, देन अगेन दिस लेयर, देन अगेन कोर। तो स्टेप बाय स्टेप हमारे 6 लेयर हमारे फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये आपका टॉप लेवल है, फिर इंटरनल प्लेन 1 है जिसको हम ग्राउंड बोलते हैं, देन मिड लेयर 1, मिड लेयर 2, इंटरनल प्लेन 2 दैट इज द वीसीसी जहां से हम सप्लाई कॉन्टैक्ट देते हैं, देन बॉटम लेयर इज देयर, ठीक है। ये आपका 6 लेयर कंस्ट्रक्शन है पीसीबी का, ठीक है। और okay, so now we see
मैं आपको कोशिश करता हूँ इसकी भी डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो दिखाने की, अगर नेट हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं करता है। आई एम जस्ट अगेन, एक मिनट देखता हूँ, मैं फिर से स्टार्ट देखता हूँ कि क्या ये सभी लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है। All the students have marked your attendance. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm trying to. This node, this part consists one channel. This is, we call it channel 1, and this is channel 2. So as you can see from here, we have taken a channel from where a red and the black two ends. This is the positive and this is the negative end for channel 1. Similarly, one can use for the channel 2 already. Okay. So what are the nodes? So let's see. This small node indicates the Y position, it's a vertical position. program आ रही है। As you can see that if I move this node, the line, one line, just automatically goes ups and downs. That is, means the vertical direction is reflected on. Okay, so it is creating some problems. So I will share you the related link. Yeah. So I think it is having some problem with the sharing. Okay, so we have another link also available. So भी मैं आपको share करने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट रुकिए। ये जो लिंक्स हैं ये इंडिविजुअल भी हैं, ये जैसे सीआरओ का अलग है, मल्टीमीटर का अलग है, ये कंबाइंड भी है। तो जो भी सुटेबल है सब हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है बेटा, आवाज आ रही सभी को? हेलो, हेलो। Yes, sir. थोड़ा नेट इशू कर रहा है, इस वजह से ये प्रॉपर चल नहीं पा रहा है, नेट इशू की वजह से हो रहा है ये। Yes, sir. एक मिनट। देखता हूँ मैं। cathode ray oscilloscope. बैक करके दिखाता हूँ, इसको देखिए। ठीक है, So here we are discussing two apparatus being used in electronics and communication engineering. The first apparatus is called the function generator, which is used to generate signals. This apparatus is called the CRO, cathode ray oscilloscope, which is an eye of an electronic engineer. It is used for viewing the signal. We can see here, right now you can see this panel. In this panel, what is written? Frequency, that is 1000 hertz.
What kind of signal is this? SIN. SIN means a sinusoidal. Then what is the amplitude? This thing denotes the amplitude of the signal means 2.004. Now if you want to change this, change the frequency, and change using this. No. So it is becoming less, it is becoming more, whatever you like. Right now I set the frequency to 1000 hertz. Now change it. Next, if I want to change the amplitude, so right, the amplitude is 2 volt. If I want to change the same knob, changing the amplitude, various amplitude, whatever you want. So right now the unit is in volts. If you want to make this unit in millivolts, see you have to divide by 10, multiply by 10. So these two, either divide this by 10 and multiply it by 10. If I divide it by 10, now you can see your unit became millivolts. Now let us come back to volts when I press this into 10. When I press this into 10 one more time, you see the point from here move to one more into 10. So right now it will be the same amplitude 2 volt and having the frequency 1000 hertz. Now what is a function? My function is sinusoidal. You can change the function from sinusoidal to various functions like triangular. If you press it again, सभी लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेशन ओवर होने वाला है, जिससे मैं थोड़ा आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकूं, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, Yes, sir. ठीक है, जिससे डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकूं मैं। square, if you press it again, this is again a square. Ramp, it's 2 volt, again 1. Ramp minus 2 volt means